Welcome to English Guru YouTube channel. Please click the red subscribe button and press the bell icon to receive all notifications about my new video lectures. Hello everyone. Today's topic for discussion is tense and its kinds. As we have already learned about the present tense and its uses in the previous session, of which the link is available in the video description box. Here in this video we will learn about the past tense. Okay, and the topic for discussion includes simple past tense, uses of the simple past tense, past progressive tense, uses of past progressive tense, past perfect tense, uses of past perfect tense, and past perfect progressive tense, uses of past perfect progressive tense. Alright, now first of all let's see simple past tense, or you can say past indefinite tense. Let's see the examples. The children played badminton. बच्चों ने बैडमिंटन खेला. This is the example of affirmative sentence, and the rule of affirmative sentence is like this: subject plus verb second form plus object. In this sentence, the children played badminton. The children is subject, played is the second form of verb play, and badminton is here object of this sentence. So the rule will be like this: subject plus verb second form, then object. Let's see the example of negative sentence. The children did not play badminton. बच्चों ने बैडमिंटन नहीं खेला. The children did not play badminton. So here the rule is like this. First of all, there is subject. The children is here subject. Then in negative sentence, you will use did not, or in contracted form didn't. And then first form of the verb, and then object. In this sentence, the children is subject, then there is did not in order to make it negative in past tense, past indefinite tense. Then there is the verb play, which is the first form of verb, and then there is the object, that is badminton. Okay, now let's see the example of interrogative sentence. Did the children play badminton? क्या बच्चों ने बैडमिंटन खेला? Did the children play badminton? So here in interrogative sentence, first of all we write did, then subject, then verb first form, then object. Now let's see the example of negative interrogative sentence. In negative interrogative sentence, first we write did, then subject, then not, then verb first form, then object. Did the children not play badminton? क्या बच्चों ने बैडमिंटन नहीं खेला? So this is the rule of negative interrogative sentence. I think it's clear to you. Alright. Now let's see the uses of simple past tense. Simple past tense का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग सीखते हैं. So the first rule is the simple past tense is used. Simple past tense का प्रयोग किया जाता है to indicate an action that was completed in the past. यानी उस एक्शन को इंडिकेट करने के लिए that was completed in the past, जो पास्ट में, भूतकाल में कंप्लीट हुआ हो. The simple past tense is used to indicate an action that was completed in the past. Let's see the examples. I wrote a letter to her last week. पिछले सप्ताह मैंने उसे एक पत्र लिखा. Second example is he met me 2 months ago. वह मुझसे 2 महीने पहले मिला था. The children went to the zoo yesterday. कल बच्चे चिड़ियाघर गए. The children
went to the zoo yesterday. Here the adverbials of the past time are used: last week, ago and yesterday. यहां पर तीनों उदाहरण में I wrote a letter to her last week. मैंने उसे लास्ट वीक पिछले सप्ताह एक पत्र लिखा. He met me 2 months ago. वह मुझसे 2 महीने पहले मिला था. The children went to the zoo yesterday. और कल बच्चे चिड़ियाघर गए. यहाँ पर लास्ट वीक, अगो और yesterday, these are the adverbials of the past time. Okay, so the rule is the simple past tense is used to indicate an action that was completed in the past. यानी simple past tense का प्रयोग कहाँ किया जाता है? To indicate an action that was completed in the past. यहाँ पर लिखने का काम और मिलने का काम और चिड़ियाघर जाने का काम, ये सभी एक्शन पास्ट में कंप्लीट हुए हैं. तो इसीलिए यहां पर सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है. नेक्स्ट यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस इज द सिंपल पास्ट टेंस इज समटाइम्स यूज्ड विदाउट एडवर्बियल्स ऑफ टाइम. यानी अभी पिछले एग्जाम्पल्स में हमने देखा था लास्ट वीक, अगो और यस्टरडे का प्रयोग किया गया था जो कि पास्ट टाइम को डिनोट कर रहे हैं. लेकिन सिंपल पास्ट टेंस समटाइम्स कभी कभी यूज्ड विदाउट एडवर्बियल्स ऑफ टाइम, यानी बिना यस्टरडे, एगो और बिफोर सच टाइप ऑफ एडवर्बियल्स ऑफ टाइम के भी सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है. लेट्स सी द एग्जांपल्स. माय फ्रेंड कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माय सक्सेस. मेरे मित्र ने मेरी सफलता पर मुझे बधाई दिया. माय फ्रेंड कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माय सक्सेस. सेकेंड एग्जाम्पल, वी वन द बैटल. हमने बैटल जीत लिया. तो यहां पर आप देख सकते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया गया है. इन द फर्स्ट सेंटेंस कंग्रेचुलेटेड, दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब कंग्रेचुलेट. एंड इन द सेकेंड एग्जाम्पल वन, WON, हियर इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ विन. तो इस प्रकार से सिंपल पास्ट टेंस का कभी कभी प्रयोग किया जाता है विदाउट एडवर्बियल्स ऑफ टाइम. नेक्स्ट यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस इज द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्टिविटी डन इन द पास्ट. यानी कोई भी एक्टिविटी, कोई भी क्रियाकलाप अगर पास्ट में, भूतकाल में किया जाता है, घटित होता है, तो वहां पर भी सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है. द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्टिविटी डन इन द पास्ट. लेट्स सी द एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल इज आई स्टडीड फॉर 2 hours. मैंने 2 घंटे तक पढ़ाई की. ही रैन फॉर हाफ एन आवर. वह आधे घंटे तक दौड़ता रहा या उसने आधे घंटे तक दौड़ लगाई. इन दोनों वाक्यों में द सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है. सिंपल पास्ट टेंस, हियर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्टडी, दैट इज स्टडीड, इज यूज्ड हियर. एंड इन द सेकेंड एग्जांपल द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब रन, दैट इज रैन, हैज बीन यूज्ड हियर. सो इट आल्सो डिनोट्स एन एक्टिविटी डन इन द पास्ट, राइट. तो सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग कहां पर होगा? सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग वहां पर भी किया जाता है जब किसी पास्ट एक्टिविटी को डिनोट किया जाए, यानी टू डिनोट एन एक्टिविटी डन इन द पास्ट. क्लियर? ओके. नाउ नेक्स्ट यूसेज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस इज द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट. सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल, कोई आदत से संबंधित तथ्य हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, या कोई रेगुलर एक्शन हो, नियमित कार्य को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, माई फादर विजिटेड द टेम्पल एवरी डे. माई फादर विजिटेड द टेम्पल एवरी डे. मेरे पिता प्रतिदिन टेम्पल
जाते थे, मंदिर जाते थे। सेकेंड एग्जाम्पल, ही ऑलवेज गॉट अप एट 5 AM। वह हमेशा 5 AM पर उठता था। He always got up at 5 AM. My father visited the temple every day. मेरे पिता रोज मंदिर जाते थे। He always got up at 5 AM. वह हमेशा सुबह 5 बजे उठता था। इन दोनों वाक्यों में हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है। Next usage of simple past tense is, the simple past tense is used in conditional clauses. Conditional clauses में भी simple past tense का यूज किया जाता है। कैसे? आइए देखते हैं। First example is, if you went there, you should meet him. यदि आप वहां गए तो आपको उनसे मिलना चाहिए। Second example is, if she worked hard, she would pass. यदि वह कड़ी मेहनत करती तो वह पास हो जाती। If she worked hard, she would pass. यदि वह कड़ी मेहनत करती तो वह पास हो जाती। Third example is, if she accepted my advice, she would overcome her difficulty. यदि उसने मेरी सलाह मान ली होती तो उसकी कठिनाई दूर हो जाती। If she accepted my advice, she would overcome her difficulty. Fourth example is, if she accepted my proposal, I would marry her. अगर उसने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो मैं उससे शादी करूंगा। इन सभी वाक्यों में कंडीशनल क्लॉज का यूज किया गया है, इफ क्लॉज का यूज किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग कंडीशनल क्लॉजेस में भी किया जाता है, राइट? नाउ नेक्स्ट यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस इज, द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड इन द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। यानी इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। लेट्स सी द एग्जांपल। रवि सेड, रवि ने कहा, आई वर्क फॉर 8 hours एवरी डे। मैं प्रतिदिन 8 घंटे काम करता हूं। This is the example of direct speech. In indirect speech, we will write this sentence like this. Ravi said that he worked for 8 hours every day. रवि ने कहा कि उसने प्रतिदिन 8 घंटे काम किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट फॉर्म में भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है। यहां पर डायरेक्ट स्पीच में द वर्ब इज इन फर्स्ट फॉर्म, दैट इज वर्क, और इनडायरेक्ट स्पीच में उसी वर्ब का सेकेंड फॉर्म वर्कड यूज किया गया है। तो इस प्रकार से जो चेंजेज ऑफ टेंसेस का रूल होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय, जो हम टेंस में चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो उसमें एक रूल है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज किया जाता है। तो सेम रूल हैज बीन अप्लाइड हियर। द रिपोर्टेड स्पीच इज इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई वर्क फॉर 8 hours एवरी डे। सो द टेंस of the verb has been changed into past indefinite tense in indirect speech. Ravi said that he worked for 8 hours every day. I hope it's clear. Now let's talk about past progressive tense or past continuous tense. Let's see the examples. First, affirmative sentence. The boys were playing cricket. बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। So the form of affirmative sentence is subject. Here in the sentence, the boys is subject. Then was or were. If the subject is in singular, then you will use was. And if the subject is in plural, you will use were. Then present participle, that is the first form of the verb plus ing form of the verb, then object. The boys were playing cricket. बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे।
So the form of the affirmative sentence is like this: subject plus was were plus present participle, or you can say verb first form plus ing then object. Second example of negative sentence, that is the boys were not playing cricket. बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे. So in negative sentence we use not after the verb was or were. was और were के बाद not का प्रयोग करेंगे and then verb first form plus ing plus object. So first of all you will write subject, then was or were according to the subject. If the subject is in singular you will use was, if it is in plural you will use were, then not, then verb first form plus ing then object. Now let's see the example of interrogative sentence, प्रश्नवाचक वाक्य. Were the boys playing cricket? क्या लड़के क्रिकेट खेल रहे थे? Here the form of interrogative sentence will be like this. If the subject is in singular number, first of all you will write was. If the subject is in plural number, यदि subject plural number में है, बहुवचन में है, तो first of all you will write were. Then you will write the subject, then verb first form plus ing then object. Right? Now let's see the example of negative interrogative sentence. Wasn't Ravi writing a novel? क्या रवि नॉवेल नहीं लिख रहा था? या दूसरा एग्जाम्पल आप इस तरह से कह सकते हैं, Was Ravi not writing a novel? यहां पर जो इसका फॉर्म है, फर्स्ट ऑफ ऑल was और were प्लस सब्जेक्ट, then not प्लस verb फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है, तो was, और प्लूरल नंबर में है, बहुवचन में है, तो were का प्रयोग करेंगे. इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे और इसके बाद not, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing, यानी क्रिया के प्रथम फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में ing ऐड करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट को लिखेंगे. इस प्रकार जो स्ट्रक्चर है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, उसके बारे में अभी हमने बात की. अब हम लोग उसके यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे. पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज कहाँ किया जाता है? इसके अंतर्गत पहला रूल है टू एक्सप्रेस अ स्टेट और एन एक्शन दैट वाज कंटिन्यूइंग एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट. पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग उस स्टेट या एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो अतीत में एक निश्चित समय पर जारी था. दैट वाज कंटिन्यूइंग एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट. अब हम इस बात को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज माई मदर वॉज कुकिंग एट 8 AM. मेरी माँ सुबह 8 बजे खाना बना रही थी. आई वॉज गोइंग टू द मार्केट इन द इवनिंग. मैं शाम को बाजार जा रहा था. द ट्रेवलर्स वर रिटर्निंग फ्रॉम दियर पिलग्रिमेज. यात्री अपने तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे. इन सभी वाक्यों में उस स्टेट या एक्शन को डिनोट किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है, जो अतीत में, पास्ट में एक निश्चित समय पर जारी था. नेक्स्ट यूज ऑफ पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस इज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस इन द पास्ट. यानी उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज किया जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है. दैट वाज इन प्रोग्रेस इन द पास्ट, जो पास्ट में प्रोग्रेस में हो, यानी जारी हो. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर. मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था. दे वर गोइंग टू द टेम्पल. वे मंदिर जा रहे थे. इन दोनों वाक्यों में एक्शन इन प्रोग्रेस इन द पास्ट को एक्सप्रेस किया गया है. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट यूज ऑफ पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस. टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट when another event
took place. पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का प्रयोग उस एक्शन इन प्रोग्रेस को डिनोट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है जो किसी निश्चित समय पर प्रारंभ हुआ हो और जब कोई अन्य घटना घटित हुई हो. To express an action in progress at some point of time in the past when another action, another event took place. Let's see the examples. I was watching television when he came. जब वह आया तो मैं टीवी देख रहा था, टेलीविजन देख रहा था. He was cleaning his room when the doorbell rang. जब डोरबेल बजी, दरवाजे की घंटी बजी, तो वह अपने कमरे की सफाई कर रहा था. He was cleaning his room when the doorbell rang. जब दरवाजे की घंटी बजी तो वह अपने कमरे की सफाई कर रहा था. नेक्स्ट एग्जाम्पल. She was sleeping when her father came from his office. जब उसके पिता अपने कार्यालय से आए तो वह सो रही थी. In these sentences, the verbs like watching, cleaning, and sleeping denote an action in progress at some point of time in the past, and another action that is happening here is when he came, when the doorbell rang, when her father came from his office. So here past progressive tense is also used to express an action in progress at some point of time in the past when another event took place. यानी कोई भी कार्य प्रोग्रेस में हो, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी निश्चित समय पर पास्ट में, और दूसरी घटना भी घटित हो रही हो, ऐसी स्थिति में पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट यूज ऑफ पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस इज टू डिस्क्राइब टू और मोर एक्शंस कंटिन्यूइंग एट द सेम टाइम. यानी एक ही समय पर दो या दो से अधिक कार्यों का बोध कराने के लिए, कार्यों का वर्णन करने के लिए भी पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज किया जाता है. पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज आल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब टू और मोर एक्शंस कंटिन्यूइंग एट द सेम टाइम. लेट्स सी द एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल इज व्हाइल आई वाज रीडिंग माय ब्रदर वाज स्लीपिंग. जब मैं पढ़ रहा था मेरा भाई सो रहा था. While I was bathing, my wife was washing clothes. जब मैं नहा रहा था मेरी पत्नी कपड़े धो रही थी. In these examples, two actions are happening simultaneously, like reading, sleeping in the first example, and bathing and washing in the second example. So, to describe two or more actions continuing at the same time, we use past progressive tense. Now, let's see next use of past progressive tense to indicate a frequently repeated action or persistent habit in the past. Past progressive tense का प्रयोग अतीत में बार बार दोहराए जाने वाले क्रिया को व्यक्त करने के लिए to indicate a frequently repeated action या persistent habit in the past, या किसी लगातार आदत को इंडिकेट करने के लिए, पास्ट की किसी हैबिट को, persistent हैबिट को इंडिकेट करने के लिए भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है. लेट्स सी द एग्जांपल्स. फर्स्ट, माय बॉस वाज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट विथ माय वर्क. मेरे बॉस को हमेशा मेरे काम में दोष लगता था. मेरे बॉस को हमेशा मेरे काम में कमी दिखाई पड़ती थी. सेकेंड एग्जाम्पल इज ही वॉज ऑलवेज स्मोकिंग वेदर एट होम और इन ऑफिस. वह हमेशा धूम्रपान करता था चाहे वह घर पर हो या कार्यालय में. रोहन वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग और द अदर. रोहन को हमेशा किसी न किसी बात की शिकायत रहती थी. रोहन वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग और द अदर. रोहन को हमेशा किसी न किसी बात की शिकायत रहती थी. In these examples, the verbs like finding fault, smoking, and complaining
denote repeated action or persistent habit in the past। यहाँ पर ये वर्ब्स जैसे कि गलती ढूंढना, गलती निकालना, फाइंडिंग फॉल्ट, स्मोकिंग धूम्रपान करना, कंप्लेनिंग शिकायत करना, इन क्रियाओं से रिपीटेड एक्शन या परसिस्टेंट हैबिट का बोध होता है। तो इस प्रकार टू इंडिकेट अ फ्रीक्वेंटली रिपीटेड एक्शन, किसी रिपीटेड एक्शन को डिनोट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, या परसिस्टेंट हैबिट इन द पास्ट को इंडिकेट करने के लिए भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। इसके फॉर्म्स को समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन अफर्मेटिव सेंटेंस वी राइट सब्जेक्ट, देन हैड, देन पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब थर्ड फॉर्म, then object। In negative sentence we write first of all subject, then had not, or in contracted form hadn't, then verb third form, then object। In interrogative sentences first of all we write had, then subject, then verb third form, then object। In negative interrogative sentences first of all we write had, then subject, then not, then verb third form, then object। Now let's see the examples। First example is I had taken my lunch। मैंने अपना लंच लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है और फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज सब्जेक्ट I, then had, then past participle means verb third form, that is taken, and the first form of taken will be take, and there is object my lunch। So in affirmative sentence first of all we write subject, पहले subject को लिखेंगे, इसके बाद had, फिर verb की third form, फिर object। Now let's see negative sentences। He had never been to Shimla। He had never been to Shimla, वह कभी शिमला नहीं गए थे। He had not taken his lunch, उन्होंने अपना लंच नहीं लिया था। Next, she hadn't read this book before, उसने इस पुस्तक को पहले नहीं पढ़ा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैड नॉट, और इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आपको हैडंट लिखना होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। Now let's see interrogative sentences। Had he ever been to Mumbai? क्या वह कभी मुंबई गए थे? Had she read this novel before? क्या उसने इस उपन्यास को पहले पढ़ा था? यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले had का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। Now let's see negative interrogative sentences। Had he not finished his work? क्या उसने अपना काम खत्म नहीं किया था? Had you never been to America? क्या आप कभी अमेरिका नहीं गए थे? यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले had का प्रयोग होता है, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस की यूजेस के बारे में चर्चा करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन बिगेन इन द पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग उस एक्शन को डिनोट करने के लिए किया जाता है जो पास्ट में, अतीत में एक और एक्शन शुरू होने से पहले पूरा हो चुका था। Past perfect tense is used for an action that had been completed before another action began in the past। यानी दूसरे एक्शन के प्रारंभ होने के पहले पूर्व का कार्य समाप्त हो चुका था। इस बात को उदाहरण के तहत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम। उसके आने से पहले ही मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम,
मैंने उसके आने से पहले ही अपना काम पूरा कर लिया था। सेकेंड एग्जाम्पल, द गेस्ट हैड ऑलरेडी अराइव्ड व्हेन आई रीच्ड होम। घर पहुंचते ही मेहमान आ चुका था। द गेस्ट हैड ऑलरेडी अराइव्ड व्हेन आई रीच्ड होम, यानी जब मैं घर पहुंचा तो गेस्ट पहले ही आ चुका था। यहां पर फर्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हैं आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है क्योंकि हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग हुआ है और दूसरा कार्य प्रारंभ हुआ यानी उसके आने का, ही केम, बिफोर ही केम। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में दो कार्य हो रहे हैं। एक कार्य पास्ट में कंप्लीट है और दूसरा कार्य प्रारंभ हो रहा है, यानी आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम समाप्त कर चुका था, बिफोर ही केम, यानी उसके आने के पहले। तो आने का काम बाद में हो रहा है और वर्क फिनिश पहले हो रहा है। सेकेंड सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं द गेस्ट हैड ऑलरेडी अराइव्ड व्हेन आई रीच्ड होम, यानी गेस्ट के आने का कार्य पहले हुआ और मेरे घर पहुंचने का कार्य बाद में हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग उस एक्शन के लिए किया जाता है जो कंप्लीट हुआ हो, दैट हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन बिगेन इन द पास्ट, यानी भूतकाल में दूसरे कार्य के प्रारंभ होने के पहले पूर्व का कार्य समाप्त हो चुका हो। ऐसी स्थिति में भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का नेक्स्ट यूज है पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग उस एक्शन को, उस कार्य को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है टेकिंग प्लेस बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग पास्ट में किसी विशेष समय से पहले होने वाले कार्य का वर्णन करने के लिए किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन टेकिंग प्लेस बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। Let's see the examples. By 4 p.m. all the teachers had left the school. शाम 4 बजे तक सभी शिक्षक स्कूल छोड़ चुके थे या स्कूल से जा चुके थे। By 6 a.m. I had left for Delhi. सुबह 6 बजे तक मैं दिल्ली के लिए निकल चुका था। इन दोनों वाक्यों में by 4 p.m. and by 6 a.m. ये पर्टिकुलर टाइम है और जो एक्शन हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइम के बिफोर हो रहा है, यानी टीचर्स के स्कूल से जाने का जो कार्य है और दिल्ली जाने का कार्य। सेकंड एग्जाम्पल में आई हैड लेफ्ट फॉर दिल्ली यानी लिविंग फॉर दिल्ली, ये दोनों कार्य पर्टिकुलर टाइम के पहले हो रहे हैं। बाय 4 p.m. यानी 4 बजे तक ऑल द टीचर्स हैड लेफ्ट द स्कूल, 4 बजे तक सभी अध्यापक स्कूल से जा चुके थे। बाय 6 a.m. आई हैड लेफ्ट फॉर दिल्ली, सुबह 6 बजे तक मैं दिल्ली के लिए निकल चुका था, यानी यहाँ पर कार्य जो पर्टिकुलर टाइम है उसके पहले हो रहा है। ऐसी स्थिति में भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। थर्ड पॉइंट इज पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग उस एक्शन इन द पास्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, वर्णन करने के लिए किया जाता है विच बिकेम द कॉज ऑफ अनदर एक्शन, जो किसी और एक्शन, किसी और कार्य के होने का कारण बनता है। एग्जाम्पल देखते हैं। शीला वॉज वीपिंग बिकॉज शी हैड लॉस्ट हर गोल्ड वॉच। शीला रो रही थी क्योंकि उसने अपनी सोने की घड़ी खो दी थी। तो यहाँ पर सोने की घड़ी खो दी थी इसलिए वह रो रही थी, यानी सोने की घड़ी खो देने के कारण वह रो रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है शी हैड लॉस्ट हर गोल्ड वॉच, यानी घड़ी खोने का कार्य पहले हुआ और उस कार्य के कारण दूसरे कार्य ने जन्म लिया, दैट वाज वीपिंग, यानी वह रोने लगी। यानी इसके बाद दूसरा जो एक्शन प्रारंभ हुआ वो रोने का एक्शन था। शीला वॉज वीपिंग बिकॉज शी हैड लॉस्ट हर गोल्ड वॉच। तो इसलिए
पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग भूतकाल में, अतीत में उस कार्य का वर्णन करने के लिए किया जाता है, उस एक्शन का वर्णन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है जो एक और एक्शन का कारण बनता है। जैसा कि यहाँ पर शीला ने पहले घड़ी खोई और फिर वह रोने लगी। नाउ फोर्थ यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इज, past perfect tense is used to describe an action in the past using the time adverbials such as already, since, before, etc. Past perfect tense का प्रयोग टाइम एडवर्बियल्स जैसे कि ऑलरेडी, सिंस, बिफोर का प्रयोग करके पास्ट एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। Past perfect tense is used to describe an action in the past using the time adverbials such as already, since, before, etc. Let's see the examples. I had already left for Mumbai. मैं पहले ही मुंबई के लिए निकल चुका था। Mr. Sharma had not come here since 1980. Mr. Sharma 1980 से यहाँ नहीं आए थे। They had not met each other before. वे पहले एक दूसरे से नहीं मिले थे। इन वाक्यों में टाइम एडवर्बियल्स का प्रयोग किया गया है जैसे ऑलरेडी, सिंस और बिफोर। तो नियम है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द पास्ट यूजिंग द टाइम एडवर्बियल्स का प्रयोग करके पास्ट इवेंट या एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इज, पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड विश। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग अधूरी कामना को या अधूरी इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड विश। फॉर एग्जाम्पल, If she had worked hard, she would have passed. अगर वह कड़ी मेहनत करती तो वह पास हो जाती। सेकेंड एग्जाम्पल, If I had left early, I would have caught the bus. अगर मैं जल्दी निकल जाता तो मैं बस पकड़ लेता। इन दोनों वाक्यों में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पर अनफुलफिल्ड विश, अधूरी कामना या इच्छा को एक्सप्रेस, व्यक्त किया गया है। Now let's talk about past perfect progressive tense, or you can say past perfect continuous tense. Past perfect progressive tense is used to describe an ongoing action that started in past and continued for some time in past. It expresses continued nature of an action that started and ended at some point in the past. The sentence includes a time reference to show that when the action began in the past or for how long the action was continued in the past. For time reference of the action, the words since and for are used. Since is used for exact time, for instance, since 1980, since Monday, since 5 p.m., etc. And for is used to express amount of time. For instance, for 5 hours, for 9 months, for 10 days, for 2 years, etc. Now let's see the examples. I had been working at the company for 5 years. मैं 5 साल से कंपनी में काम कर रहा था। Mr. Sinha, who was terminated, had been working in this college since 1980. Mr. Sinha, जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी, वे 1980 से इस कॉलेज में कार्यरत थे। John had been playing the piano for 20 years. John 20 years से 20 साल से पियानो बजा रहा था। I had been watching movie for 2 hours. मैं 2 घंटे से फिल्म देख रहा था। So here the form of past perfect progressive tense will be in affirmative will be like this: subject plus had plus been plus present participle
means verb first form plus ing plus object plus time reference. The difference between present perfect progressive tense and past perfect progressive tense is that the present perfect continuous tense indicates an action that began in the past and continued up to the present, while the past perfect continuous tense indicates something that began in the past, continued in the past, and also ended at a defined point in the past. I hope it's clear to you. Alright. Now let's see the examples of negative sentences. Example number 1. He had not been doing his work since morning. वह सुबह से अपना काम नहीं कर रहा था. They had not been watching television for 3 days. वे 3 दिनों से टेलीविजन नहीं देख रहे थे. So the structure of negative sentences are like this. First of all, we write the subject, then had, then not, then been, plus present participle, verb first form plus ing, plus object, plus time reference. Alright, now let's see the examples of interrogative sentences. First example is, had he been working on this project for 5 years? क्या वह 5 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे? Second example, had she been using the same cell phone since 2010? क्या वह 2010 से उसी सेल फोन का इस्तेमाल कर रही थी? थर्ड एग्जाम्पल, हैड यू बीन हेल्पिंग द पुअर फॉर 3 years? क्या आप 3 साल से गरीबों की मदद कर रहे थे? Thus here the form of interrogative sentences will be like this. First of all, you will write had, then subject, then been, then present participle, means verb first form plus ing, then object, then time reference. Students, this was all about today's class, and I hope the topic that we have discussed here would have been clear to you. Thank you. Have a nice day.